IMA 2000, Correct. 2017 batch, Correct. and I've cleared my class 4 in May and looking for a job for fresher fourth engineer. So you have cleared. Okay. This discussion is about Mrinal. Okay, let's start Mrinal. Ongoing. We will come to you on that also. Correct. Yes. Yes. Good afternoon, sir. Yeah. Good afternoon. Sir, I'm Mrinal Kashyap. I'm from batch 2017-21. Passed Correct. out this year only from Correct. IMA. Thank you, sir. Okay, so like we can see that like some students from the batch 2016 and 2017, they are suffering, because of some misguidance. So what is that issue? Can you tell me clearly? Anyone from you? Actually, it is related to the less percentage 45. Actually, they are taking students who have less than 60 percentage, and they've also saying like that they'll give you the 100% placement and all. At the time when you will get the this call letter, and when you'll go to that to their office, and they'll say like, okay, you just take the admission and we will provide you 100% placement over there. So there's a total fraud going over there. Correct. So something like that, it's something like, they are if you have less than 60, the student, they don't even have a chance to go to the good universities or something like that. So they used to target them. Correct. To fill the seats or something like that. Yes. Correct. Anyone from this batch? Anyone want to say something other than Yogendra? Mr. Arbaj Ahmed, Aman Jaiswal, Promit De, Amit Kumar. Anyone? Anyone facing the same issue? See, this meeting is about this special issue. So anyone, you have to say something. Anyone facing about the same issue about the 60 percentage who have taken the admission in 45 percentage and now they are suffering because they can't give the exam. Anyone is there? Anyone from IMA? Mirnal, I can see he's on video call. He can say something. Yeah. Like everyone is facing the issue. Everyone is saying. Yeah. Sir, we are facing about that for 45% issue only because we took the admission. Actually, I got 59% in PCM. So at that time, college told that you can you can go and give exam in MU. MU class 4 you can give. But now, 2-3 days before, we are getting the DG circular about all that. Correct. You all know that. Correct. So that is the issue. Any other cadet who face the same issue? Yogendra, you also face the same issue, or it was different for you? I scored more than 60, but one of my friend is facing the same issue. So what DG told him is that he is eligible to give Part A and Part B both for our batch. And for a junior batch, they have told like they have to do NCV vessels. Then only they will be able to give this NCV class only. They are not eligible for MU class foreign going vessel. So this is the situation going on. Correct. So one thing I want to ask you, when you complained to DG Shipping, you shown that the pamphlet of college where it is clearly written that we are taking admissions who are having 45% mark. So you have shared that with the DG, Mrinal? No, sir, not till now. You all have not shared that pamphlet with DG? No, sir.
So why didn't you? No, sir. Actually, some of the students, they have shared the batch of, I guess, 2014 and 2018. The batch was giving this class 4 now. So they were facing the same issue, and they've already given all the documents to the DG, but they didn't get any reply yet. So I know some of the guys from that batch, and they have told me like, "Bhaiya, we cannot give the exam. This is what the DG is saying right now." Actually, they are much younger, I guess. They are maybe like in this. They have passed out now only in 2021. So the Yes, sir, student yes, who sir. have already passed in 2020, 2019, and 2018, they are facing more issues nowadays. Even now, DG have said like to them, their DG have said like they are not even eligible to give any MU class for exam. So they have given all the documents to DG in Mumbai, not even in other states, but in Mumbai they have given all the documents related to everything. Correct. I don't know. Let ask to the guys who are here. They must know about. Correct. Because it is a very clear issue कि आपका कॉलेज ने clearly आपके पैम्पलेट पे छाप के रखा है 45% can get the admission, बट उसके बावजूद कि डीजी से ये रिप्लाई आना कि कॉलेज ने इन्फॉर्म ऑलरेडी कर दिया था स्टूडेंट्स को, देन आल्सो स्टूडेंट टेकन द एडमिशन। तो मैं वही पूछना चाह रहा था कि कहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग रही, कहाँ पे मिसकम्युनिकेशन रहा आपके और डीजी के बीच में, कि क्योंकि डीजी ऐसा बोल रहा है, डीजी क्लियरली सेइंग कि ऑलरेडी कॉलेज टोल्ड यू अबाउट दिस, बट पैम्पलेट पे तो वहां पे 45% लिखा हुआ है, सो इसमें तो मिसकम्युनिकेशन का कुछ होना ही नहीं चाहिए। देन आल्सो दिस मिसकम्युनिकेशन हैपेंड। तो इसलिए मैं पूछ रहा था एनीवन लाइक हु इज फेसिंग लाइक हु कंप्लेन टू डीजी एंड हु इज देयर इन आवर मीटिंग, समवन लाइक निर्नल ने तो शेयर नहीं किया, बट एनी अदर गाय, बिकॉज कोई मिसअंडरस्टैंडिंग। हाँ जी, Good afternoon, sir. हाँ जी। Yes, sir. So we have submitted to DGR complaint. अच्छा, जो कॉलेज का पैम्पलेट था, हिंदी में बात कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, जो जहाँ पे 45% क्लियर लिखा हुआ था, जिसको देख के आप लोगों ने एडमिशन लिया, वो शेयर किया था डीजी के, वो अपनी कंप्लेंट में मेंशन किया था कि यू हैव सीन दैट पैम्पलेट देन ओनली यू हैव टेकन द एडमिशन। जी सर, मेंशन किया था। ओके, सो एट द टाइम ऑफ टेकिंग द एडमिशन आपको यहाँ पे जो आपका डेस्क है वहां से क्या रिस्पॉन्स मिला था अबाउट दिस? सॉरी सर, रिपीट करना, क्या बोला आपने? रचित शर्मा, आप रचित शर्मा बात कर रहे हो ना? हाँ जी सर। हाँ जी रचित, तो आपने जब एडमिशन ले रहे थे तो आपको, जब आपके तो कम थे 45%, मतलब आपके 60% से कम थे ना? हाँ जी सर। ओके, सो आपने कॉलेज को क्या कहा था, मतलब कॉलेज ने आपको क्या कहा था एट द टाइम ऑफ एडमिशन? सर, एक वो नोटिस आया था, मतलब उसमें जैसे वो पैम्पलेट जो आपने देखा है ना, हाँ। वैसे ही पैम्पलेट मतलब मैंने भी देखा, तो हमने पूछा था, तो तब कॉलेज ने ही बोला था कि 45-60 से कम है तो हम ले रहे हैं, मिनिमम 45 होने चाहिए। करेक्ट, मिनिमम 45 होने चाहिए। यस सर। ओके, तो कॉलेज ने क्लियरली, वो तो कॉलेज में किसी अथॉरिटी ने बोला था या फिर जो नॉर्मली दोस्त हु आर वर्किंग इन एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, उन लोगों ने बोला था? एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, ओके, तो उसके बाद आप लोगों ने कंफर्म किया था कि किसी से कॉलेज से रिगार्डिंग दिस? सर, लेटर आया था कॉलेज से ना, जैसे जब हमने अपनी सीट बुक कराई थी तो लेटर आया था, मतलब जैसे मेरा नाम रचित शर्मा है तो मेरे नाम से लेटर आया था, उसमें भी मेंशन है कि PCM 45 चाहिए। अच्छा, आपके पास लेटर आया था? यस सर। ओके, सो वो लेटर आपने डीजी में सबमिट किया था? यस सर, किया था सर। अब उतना ध्यान तो मेरे को, मतलब क्या क्या सबमिट किया उतना तो थॉरोली मुझे पता नहीं है, पर हमने किया था सबमिट सर, वैसा प्रूफ भी एक सबमिट किया था। अच्छा, कौन सी ईयर में किया था? 21-20 में? अभी सर, जस्ट अभी जो लास्ट मंथ कंप्लेंट की थी। अच्छा, कब किया था लास्ट मंथ कंप्लेंट? सर, लास्ट वीक ऑफ नवंबर।
लास्ट वीक ऑफ नवंबर अभी किया था जस्ट, है ना, नवंबर दिसंबर जनवरी, ओके ओके। रिप्लाई तो आ गया है डीजी का। हाँ हाँ रिप्लाई, बट वो रिप्लाई आप लोग को, वो आप लोग के फेवर में नहीं है ना, लाइक उस रिप्लाई से, यस सर, यस सर। करेक्ट, इट इज नॉट इन योर फेवर। सो द इशू इज दैट कि आज इतने सारे स्टूडेंट्स, आई थिंक 120 और 130 स्टूडेंट्स है ना। नहीं सर, ज्यादा ही होंगे, 16 बैच, एक्चुअली 15 सर, बैच। सॉरी टू इंटरप्ट, एक्चुअली सर ये सब स्टार्ट हुआ था हमारे बैच से। 2013 2017 बैच से स्टार्ट हुआ था। एक्चुअली उससे पहले वो 60% से लेते थे, बट उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने सडनली 45 कर दिया, क्योंकि मेरा एडमिशन 60% पे हुआ था वहाँ। तो ये क्या करते थे, एक पर्टिकुलर फ्रेम के अंदर 45 रखते थे जब इनके बच्चे कंप्लीट नहीं होते थे। तो मेरे बैच से वो स्टार्ट हुआ 45 का ये, तब जब मेरे बैच ने क्लास 4 देना स्टार्ट किया तो उनको ये 60 का इशू आया। दे आर द फर्स्ट वन हु हैव रेज्ड द इशू। करेक्ट। तो तो फिर 13 में 18 में आप लोगों ने जब एग्जाम देने के लिए गए 18-19 में, तो आप लोगों ने इस इशू को आगे रखा, देन फर्स्ट टाइम हमारा था वो, जो जिन्होंने ये फेस किया। हाँ फिर सर उसके बाद ऐसा हुआ था कि हमारे जो मेरा एक दोस्त था, उसने मतलब डीजी को भी लेटर लिखा और दिस स्कूल को भी, दिस कॉलेज को भी लेटर लिखा, अन्नामलाई को, सबको लेटर लिखा। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो बच्चे हैं जो ऐसे हैं जिनके 60 से नीचे है, तो वो पार्ट ए एग्जाम जो है हमारा, जो एक्सेप्शन होता है, वो भी वो देंगे जिनके 60 से नीचे है, और उसके बाद उनको पार्ट बी भी देना पड़ेगा। ओके। तो ये एक सोल्यूशन निकाला, वो भी हम भी कुछ 6 महीना लड़े थे इस चीज के लिए। हालांकि मेरे साथ ये इशू नहीं था, पर मैं, मेरे दोस्त थे तो उनके साथ मुझे ये करना पड़ा। तो ये सर हमारे बात के बाद फिर सर जब ये इशू बहुत क्रिएट हुआ, फिर इनके बाद इनको लेटर आया सर वो डीजी का, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू बन चुका था उस टाइम पे। मेरे दोस्त ने ये इशू को सबसे पहले उठाया था। वो अभी एग्जाम दे रहा है सर, पार्ट ए का एग्जाम दे चुका है, वो पार्ट बी का एग्जाम दे रहा है। तो उसके बाद ये इशू उठा था कॉलेज। ओके। सो 2013 में एडमिशन लिया, जो फर्स्ट टाइम इशू हुआ था, उसने एग्जाम्स कब दिए? सर 2017 में हमने कॉलेज क्लियर किया, और 2019 में हम लोगों ने ये डीजी का एग्जाम देना स्टार्ट किया था। तो उससे पहले कोई इशू नहीं था सर 45 का, क्योंकि मेरे दो खुद ऐसे फ्रेंड हैं जिनके 60 से नीचे हैं, और वो क्लास 4 क्लियर भी कर चुके हैं। एक मेरा ही बैचमेट है, मेरे साथ ही था, तो उसके पास सीओसी है सर 45% में, ही गॉट हिज सीओसी आल्सो। सो और फिर उसके बाद अचानक से मेरे एक दोस्त को वो डेफिशिएंसी आई, उसने वो रेस किया इशू, तो उन्होंने बोला कि नहीं वी कैन नॉट। तो उसके बाद सर बहुत बड़ा इशू हुआ ये, और फिर उन्होंने सबको मना कर दिया 60 से नीचे। So पहले एक आध लड़के So one more thing I want to ask is that कि जब ये इशू हुआ था 18 में, जब आपके 2013 के बैचमेट्स के साथ में, सो वहां पे एमएमडी या डीजी से कोई सर्कुलर, इस सर्कुलर के अलावा, ये तो नवंबर का सर्कुलर है, नवंबर में कंप्लेंट किया तो यू गेट द सर्कुलर इन दिसंबर, बट इससे पहले कोई एमएमडी ने पर्टिकुलर सर्कुलर निकाला अबाउट दिस 45% एंड 60%? तो 60% इज देयर फ्रॉम लॉन्ग टाइम, 60% is there in DG from long time, there is no issue on that, but ये जैसे कि आप बोल रहे हो ना कि 45% वाले भी already have the COC, so ऐसा कुछ और आया था क्या सर्कुलर? सर सर्कुलर आया था एक्चुअली 2019 में, जब मेरे दोस्त ने ये इशू रेज किया था, तो उसको बोल दिया था कि आप पहले एमयू नहीं दे सकते। जब पार्ट ए का सोल्यूशन उसे बताया, देन डीजी का सबसे पहला ऑफिशियल सर्कुलर गया था हमारे जूनियर बैच को। कौन से बैच में? 2000 एंड आई गेस 14 या 2015 और 19 के बीच वाले जो बैच है सर, इन लोगों को ये गया था हमारे जूनियर्स को कि, और एक्चुअली हमारे जूनियर्स को उनको ऑफिशियली गया था कॉलेज में, जब वो 3rd ईयर या 4th ईयर में थे, दे आर नॉट एलिजिबल टू गिव एमयू क्लास 4 फॉरेन फ्लैग। ईयर कौन सा ईयर था सर? ईयर तो मुझे पूछना पड़ेगा कि मेरे जूनियर थे, मैं उसके बाद हाँ, तो जूनियर 2013 में आपने ज्वाइन किया, तो आपके जूनियर मींस 14-15 में, 2015 और 2019 में जो पास आउट हुए, 2019 में बेसिकली जो पास आउट हुए, उनको ये सर्कुलर मिला था सर। ओके। तो उन्होंने मुझे फर्स्ट ये दिखाया था सर्कुलर की, ऐसे डीजी से सर्कुलर आया है दैट दे आर नॉट एबल टू गिव द एमयू क्लास फॉर फॉरेन फ्लैग, बट दे आर स्टिल, दे हैव चांस टू गिव फॉर एनसीवी। Correct. So, okay, correct. Okay, now I understand. So the thing is that कि ये जो issue है, ये already कॉलेज में 2014-13
15 में ऑलरेडी चल रहा था, करेक्ट? आप देन ऑल्सो 16 और 17 में, लाइक कुछ बच्चे यहाँ पे हैं 16 17, देन ऑल्सो दे हैव टेकन द एडमिशन, करेक्ट, लेस देन 60%। तो इसका मतलब कॉलेज को पहले भी ये इश्यूज फेस कर रहे थे बच्चे, और उसके बावजूद भी कॉलेज ने एडमिशंस लिए, करेक्ट? Yes, sir. Yes. कॉलेज ने कुछ इन्फॉर्म नहीं किया कि यू कांट टेक द एडमिशन, यू कांट गिव एग्जाम्स, यू विल फेस प्रॉब्लम लेटर, है ना, गिविंग योर क्लास 4 एग्जाम्स, समथिंग लाइक दैट। ओके, करेक्ट। सो द थिंग इज दैट कि जो डीजी ने ये जो लास्ट सर्कुलर निकाला है, एनीबॉडी कैन शेयर, और आई कैन आल्सो शेयर दिस। I have something, 1 minute. I will just share this circular. Just 1 minute. Share screen. You can see the sharing screen. Yes, sir. Okay, just a minute. The candidate who have joined DGS approved 4-year marine engineering course in IMA Chennai during the year 2013, 14, 15 are, you can see this circular. Yes, sir. Okay, are required to have 10+2 PCM with 60% mark to be eligible for appearing MEO class 4 exams. Since some of the candidates have not fulfilled the eligibility criteria, are not allowed to appear in MEO class 4 examination by MFDs. It is understood that IMA Chennai has also informed these candidates about the eligibility criteria of DGS prior to joining the course, and undertaking has been obtained from these candidates by IMA. जो इसने ये mention किया ना, the undertaking has been obtained from these candidates by IMA Chennai. So ये जो line है ना, the undertaking has been obtained from the candidate by IMA Chennai. So anything you have signed regarding that? No. I guess they don't have, because I know that this situation actually. They used to give this all this screening letters and joining letters, but they don't have any proof that they have told the student that we are taking below 45 and you have we will not be able to give any exam and all. I guess some new student can tell more about this. कोई बता सकता है इसके बारे में? I guess Rachit or someone, mineral, somebody can tell about this line. No, sir, I don't think so. We have signed it. And one more thing is that अभी जो रचित ने बताया कि like they receive a letter from college where it is clearly mentioned that you can take the admission. This is true or not? Sir, excuse me, sir. Yeah. Sorry for interrupting, sir. Sir, actually ये जो लेटर जो घर पे आया था ना सर, हेलो, तो लेटर में ये मेंशन नहीं था कि आप कि 60% आपको मिनिमम चाहिए और तभी आप एडमिशन, वो बस लिखा हुआ था कि 40% आपका है, आप एडमिशन ले लो। इसका ये मेंशन नहीं था कि आपको MEO 4 का क्लास 4 का एग्जाम आप नहीं दे सकते हो या DCP में कुछ दिक्कत है, इस चीज का कोई हम लोगों को पता नहीं था, तो एडमिशन क्यों लेते? बहुत सारा फील्ड पड़ा हुआ था। Actually this is the moral responsibility of any institute. You know, इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं है। This is the moral responsibility of any institutes. अगर आपके बच्चे मैराइन इंजीनियर कोई BA या फिर कोई BSc थोड़ी है, कोई नॉर्मल कोर्स थोड़ी है। मैराइन इंजीनियरिंग इज, इट मींस यू आर पर्टिकुलरली स्टडीइंग इट टू गो टू द शिप, है ना। पर्टिकुलरली आप मैराइन इंजन के बारे में पढ़ रहे हो, सारी नॉलेज शिप से रिलेटेड है। और अगर आप शिप में ही ना जा सको, इस ये 5 साल की
पढ़ाई करके और 12 लाख रुपए देके, then what is the use of this study? No one will recognize you. आप नया इंजीनियर बोलेंगे किसी को, आप नॉर्मल जॉब्स के लिए जाएंगे तो कौन आपको रिकॉग्नाइज करेगा? कोई भी नहीं. सो दिस वाज द मॉरल रिस्पांसिबिलिटी कि ये बच्चे एग्जाम दे पाएंगे नहीं, इस चीज में तो डिबेट हो ही नहीं सकता है. दैट इज करेक्ट और नॉट? यस सर. अब वो पहली बात तो सर ये है कि वो तो है और कोई लेगा नहीं, फिर पैसा बर्बाद हो गया, या फिर हम लोग को मान लीजिए लाइफ कैरियर आगे हिले ही नहीं है सर, किसी फील्ड में हम जा ही नहीं सकते ना सर. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. नो नो, ऐसे काम नहीं चलेगा. ये तो बहुत ही गलत है कि आपने कुछ भी 40% डाल दिया बच्चों को एडमिशन, बिकॉज आप ठीक है दूसरी चीजों के लिए आपने अगर लाइक फॉर एग्जांपल आपने बीए करा, ठीक है 35% में 40% में, बट गवर्नमेंट जॉब की रिक्वायरमेंट है 60%. दैट इज अ डिफरेंट इशू कि बीए एक जनरल है, नॉर्मल कोर्स है, बट दिस इज मैराइन इंजीनियरिंग पर्टिकुलरली फॉर शिप. यू हैव टू गो टू द शिप after doing this course. So nobody can debate on this कि ये ना हम लोगों ने ये चीज मेंशन नहीं किया और कि आप लोग बाद में एग्जाम दे सकते हो नहीं, तो ये तो गलत है. बिकॉज दिस इंस्टीट्यूट इज कमिंग अंडर डीजीएस, डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग. तो सारे रूल्स रेगुलेशंस उसको डीजी के फॉलो करने चाहिए थे, है ना. सो ये तो कोई डिबेट का इशू है ही नहीं. सो यू हैव रिसीव्ड दैट डॉक्यूमेंट, करेक्ट? अमित कुमार, regarding that 40%. यस सर. और ऐसे भी सर कोई मतलब इस पे मतलब कि साइन नहीं करवाया कि नहीं हम करवा लिए हैं तुमसे, तुम पढ़ा नहीं, ध्यान नहीं दिया, हमने केयरफुली ध्यान दे के पढ़ के साइन किया है अब कि हाँ 40% है, हमने उस पे साइन किया. और हमको मतलब पता भी नहीं है ना पहले से कि 60% चाहिए तब हम आगे जा सकते हैं, हम अफोर्ड कर दे सकते हैं. नहीं वो आप ऐसे भी नहीं करवाया कि बस वो आप देखो एडमिशन लेते वक्त डीजीएस का कुछ रोल था आपके एडमिशन में? डीजी शिपिंग का कुछ रोल था? ऐसा कुछ नहीं था सर. नहीं था ना, क्योंकि मैरिन इंजीनियरिंग में कोई रोल नहीं होता है डीजी शिपिंग का. उसमें होता है जो कैडेटशिप करते हैं, ठीक है. तो मैरिन इंजीनियरिंग इज लाइक यू आर आफ्टर 12th यू आर डायरेक्टली गोइंग टू द कॉलेज एंड यू आर टेकिंग एडमिशन. दैट्स व्हाट यू आर डूइंग ना. आप लोग इसमें कोई डीजीएस का कोई रूल, आप लोग को तो पता भी नहीं होगा कि मैराइन इंजीनियरिंग जब आप लोग ज्वाइन कर रहे होंगे तब आपको पता भी नहीं होगा कि डीजी शिपिंग क्या क्या होता है, उसके रूल्स रेगुलेशंस क्या क्या है. आप लोगों को पता था ज्यादा कुछ जब आप 12th के बाद एडमिशन लेने के लिए गए? नो सर. हाँ, तो क्योंकि ये सारे की जब कॉलेज अप्रूव्ड है डीजी से, तो कॉलेज की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो सारे रूल रेगुलेशंस फॉलो करे कि मैराइन इंजीनियरिंग के बाद में बच्चे को क्लास 4 एग्जाम देना ही है, उसको शिप में जाना ही है. सो जो भी रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी है, उसी के हिसाब से चलता. सो नो प्रॉब्लम, आई अंडरस्टूड द प्रॉब्लम, लाइक क्या क्या हुआ पहले और बाद में क्या क्या हुआ और कितने लोगों ने ये सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं. सो जनरली मतलब कि आप ऑल अराउंड, ये तो एक पर्टिकुलर कॉलेज की बात होगी, ऑल ओवर इंडिया से आपको कुछ आइडिया है कितने बच्चे होंगे? नो सर, सिर्फ यही कॉलेज है जिसका सर ये इशू है. अच्छा, और कहीं पे कोई ये इशू नहीं है? No, not at all. Not a single, I guess. But I have met many students, and I know only IMA students are facing, because MMD कोलकाता से लेके मैंने ये situation, क्योंकि we are the first batch who have faced this. और मेरे साथ नहीं हुआ, बट स्टिल मैं उनके लिए उनके साथ था, उनके साथ मैंने पूरा कोऑर्डिनेट करा. मेरे को तो कोई सिंगल प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि 60 से अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती. बट मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनको बहुत प्रॉब्लम हुई. और सिर्फ ये IMA, क्योंकि आप जब MMD में सर जाते हैं तो ऊपर आपके लिखा जाता है कि दिस कैंडिडेट हैज पास्ड फ्रॉम IMA. तो हमारा जो बैकग्राउंड चेक होता है सबसे पहले सर एनेक्सर 4 और एनेक्सर 4B ये सबसे पहले चेक किया जाता है. They used to verify with the college, and if you have any single issue also, they'll make you run like nothing. So तो वो actually sir वो already mentioned है, IMA Chennai means IMA Chennai. So this all problem is going with the IMA Chennai only, I guess. Correct. One more thing I want to ask you, like you have taken admission in 15, 16, 17, something like that. तो अभी जब आप लोग कॉलेज में थे, बिफोर पासिंग आउट 20 और 21, सो 18, 19 में भी या 20 में भी आप लोग कुछ आइडिया कि ऐसे एडमिशंस हुए हैं कॉलेज में? किसी को कुछ आइडिया है? सर अभी भी कॉलेज में बच्चे हैं सर, वो मतलब कोई फाइनल ईयर में, कोई थर्ड ईयर में है,
It's admission. अच्छा, सो वो लोग बच्चे 17 के बाद के हैं, करेक्ट? 18 से 19? Yes, sir. Yes, sir. मैं 16 का हूँ ना सर, हाँ, मतलब मैं हाँ। 20 में सर था। एक्चुअली लॉकडाउन के बाद ही सब कोई मतलब बंद कर दिया, क्योंकि इशू लॉकडाउन के बाद होना स्टार्ट हो गया तो बंद कर दिया एडमिशन होना, क्योंकि कोई नहीं एडमिशन नहीं ले रहा है अब। अच्छा, अभी बंद कर दिया ना ये इशू रिगार्डिंग दिस? जी। ओके, ठीक है। वो बंद नहीं किया, वो तो ले रहा है, बाकी बच्चे नहीं जा रहा है, क्योंकि सब पूरे ऑल इंडिया में फैल चुका है ना इस इशू। अच्छा, अच्छा, वो ही इज स्टिल टेकिंग एडमिशन? यस सर। ओके, 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 करेक्ट। ओके, नो प्रॉब्लम। एक्चुअली एक चीज मैं डीजी की तरफ से बताना चाहता हूँ कि डीजी को जब ये कंप्लेंट करा गया था तो डीजी ने साफ बोला था, और ये एमएमडी कोलकाता में हुआ था मेरे दोस्त के साथ, कि उन्होंने बोला था दिस इज योर इंटीरियर मैटर विद द कॉलेज। हाँ, ठीक है, डीजी विल कैन नॉट डू एनीथिंग इन देयर, कि ये कॉलेज का इशू है कि उन्होंने 45 पे क्यों लिया था। एनी हाउ ये जब इशू मेरे दोस्त ने बहुत बड़ा बनाया था, उसकी मम्मी ने मेल किया था डायरेक्टली, दे हैव कॉपीड टू डीजी शिपिंग प्रिंसिपल एंड ऑल द डिग्नेटरीज आई गेस। तो उसके बाद ये इशू था, क्योंकि डीजी शिपिंग ने भी हाथ खड़ा कर दिया था, बिकॉज ये वैसे डीजी शिपिंग का ये था, पर डीजी शिपिंग ने बोला कि ये जो इशू है आप कॉलेज से रिजॉल्व करो। देन कॉलेज से यहाँ पे आया, देन उसके बाद सर आप ये जाके इतना बड़ा इशू बना है। तो ये एक्चुअली डीजी की तरफ से भी पहले इस चीज को नकार दिया गया था, क्योंकि उससे पहले मेरे बहुत दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने 45 पे सीओसी क्लियर किया, क्योंकि उनकी वो डेफिशिएंसी कभी आई नहीं। इवन दिल्ली में अभी भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको लकीली मौका मिला कि वो एग्जाम दे सकते हैं, और कुछ दे भी रहे हैं। सो इट डिपेंड्स कि किसकी किस में डेफिशिएंसी आती है। तो उसके बाद से उन्होंने मतलब ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। अब उन्होंने एक जनरल सर्कुलर ही निकाल दिया स्पेशली फॉर आईएमए। सो ये इशू है सर। सो आईएमए डीजी से अप्रूव्ड है या नहीं है? सर डीजी से अप्रूव्ड है, वो डीजी से अप्रूव्ड है, डीजी कोर्सेज एवरीथिंग इज वैलिड, बिकॉज मैंने असेसमेंट क्लियर किया तो एवरीथिंग इज वैलिड। थोड़ा सा इशू पहले था कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी का, यूनिवर्सिटी का भी सर बहुत पंगा हुआ उसमें, क्योंकि वो ले नहीं रहे थे और इनवैलिड कोर्सेज थे हमारे। देन जब से अन्नामलाई हुआ तब से आप यू कैन गिव द असेसमेंट 60 से अबव है, देयर इज नो हार्म, नो एनी ट्रबल नहीं है। 60 से ऊपर कोई ट्रबल नहीं है, चाहे आप आईएमए से चाहे रुकिए रुकिए, कुछ मतलब नीचे बात। अगर आप आईएमए से हो तो देन देयर इज अ big problem for you. So the thing is that finally the thing is that कि वो उस पे डाल, like DG shipping is putting on the college, correct, and college किस पे आप लोगों पे डाल रहे हैं कि this is your mistake, correct, this is your mistake, and still they are taking the students, and MMD is saying that this is matter of between you and college, correct. So चारों तरफ से आप लोग सर्कल में घूम रहे हो, करेक्ट? यस सर, दे आर सेइंग कि आप पढ़ाई करो, एडमिशन लो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन एमएमडी एग्जाम, बट दे डोंट नो द रियलिटी एक्चुअली। तो जैसे वो पास आउट हो रहे तो एमएमडी फिर वहां से बोल रहे कि आप नहीं दे सकते, यहाँ से कॉलेज बोल रहा है कि आप जाइए क्लियर कीजिए और आप दे सकते हैं वहां से, क्योंकि वो डायरेक्ट एमएमडी को नहीं पूछ सकते। और एमएमडी जब आप वहां पे आप पहुंचोगे तो आपको पता लग रहा है कि हम एग्जाम नहीं दे सकते। तो ये सिचुएशन हो रही है, इसी को मिसगाइड ना हो लड़के, इसीलिए उन्होंने डीजी ने सर्कुलर ही निकाल दिया कि आप दे ही नहीं सकते। नहीं, डीजी के सर्कुलर निकालने से क्या होता है? डीजी ने सर्कुलर निकाल दिया तो वो सर्कुलर क्या 12th वाले स्टूडेंट्स के पास पहुंच पाएगा? 12th पास वालों के पास क्या रीच है ये सब चीजों की? 12th वालों को पता भी नहीं है कि डीजी शिपिंग क्या है, उनको तो पता भी नहीं www.dgshipping.gov.in क्या है, करेक्ट? बिकॉज वो तो कॉलेजेस, राइट सर, वो तो कॉलेजेस देखते हैं, क्योंकि जब मैं 12th में था तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था, करेक्ट? सो किसी को पता नहीं होता है कि सर्कुलर्स के बारे में, इवन जो मैरिनर्स होंगे उनको ही नहीं पता होगा कि सर्कुलर्स निकला है। ये तो व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर हुआ तब जाके मुझे पता चला। अगर मैं इस व्हाट्सएप ग्रुप में ना होता तो मुझे भी पता नहीं चलता कि, और मैं भी किसी को अगर कोई मुझसे पूछता तो मैं भी उसको बता देता कि देयर इज नो सर्कुलर लाइक दैट, करेक्ट? सो ऐसे सर्कुलर निकालने से तो काम चलता नहीं है, ठीक है, अनटिल अनलेस, बिकॉज आई फील कि किसी कॉलेज में नहीं हो रहा है, ओनली एक ही कॉलेज में हो रहा है, बिकॉज सभी कॉलेजेस अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हैं, दे नो द रूल एंड रेगुलेशंस, दे आर नॉट इन फिलिंग देयर सीट्स, करेक्ट? सो आई फील ये तो जानबूझ के इस तरीके से किया गया है कि बाद में जो होगा देखा जाएगा, अभी एडमिशंस ले लेते हैं। दैट इज ट्रू और नॉट? और दूसरी बात ये है कि मैरिटाइम में, मर्चेंट नेवी में फीस बहुत ज्यादा होती है, 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख, 10 लाख सबसे ज्यादा फीस है मैरिटाइम की।
उसके बावजूद बच्चे लोग इस तरीके से सफर होंगे, तो ये तो देश का मतलब कि एक हम लोग देश को अपाहिज कर रहे हैं, उसको लंगड़ा बना रहे हैं। इतने हमारे युवा जो है 12 लाख पूरी फैमिली सफर होती है, 12 लाख को आपको देने में नेक्स्ट 10 साल निकल जाते हैं। इवन आप अगर शिपिंग में भी आएंगे देन ऑल्सो यू इट विल टेक 5-6 years। और जब आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, उसके बाद आप शिपिंग में ही नहीं जा रहे हैं, then it became a huge burden on everybody head, even the family and the particular person। so ये बहुत बड़ा इशू है। the thing is that कि कितने बच्चे अभी है जो आप लोग के मतलब कि यूनिटी में है, लाइक 120 130 जो एक दूसरे को जानते हो, समथिंग लाइक दैट। फ्रॉम We have more than 250 के अराउंड तो होंगे सर। 250। सो 250 क्या अभी जो नया एडमिशन सर, हाँ। अभी नया एडमिशन अगर हम लोग 17 में एडमिशन लिए थे और 18 में जो लिए हैं और 19 में जो लिए हैं, सब मिला जुला के हमको लगता है लमसम 500 पहुंच जाएंगे सर। 500 स्टूडेंट्स हैं जो, ओके। यस सर, क्योंकि 85 तो हमारे बैच में है। करेक्ट। 85 में से मिनिमम होगा 10 का कहीं होगा 60%, नहीं तो सब तो 60 से बिलो ही है। करेक्ट। सो एक और चीज मैं, आप लोगों ने क्या वो 6 मंथ का अपना ऑनबोर्ड ट्रेनिंग कर लिया क्या? कुछ लोगों ने, काफी लोगों ने। नहीं सर, मतलब कुछ लोग मतलब अभी जा चुका है, जो हमारे साथ के जितने फ्रेंड है वो सब जा चुके हैं कुछ, और कई बाकी हैं बहुत सारे। क्यों? हाँ, क्यों नहीं जा रहे हैं इस सोच के कि अब पता ना आगे होगा या नहीं होगा, तो फिर आगे पैसा दे के जाना, सीट पे चढ़ना। नहीं, बिकॉज कि आपको एक और इशू आप लोग फेस करते हो कि जब आप अभी अगर कॉलेज से आपको प्लेसमेंट नहीं मिला, तो उसके बाद आप लोग को एजेंट को इधर उधर पे 5-6 लाख रुपए 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, तब जाके आपको कोई शिफ्ट मिलती है। और वहां पे भी आप लोग को कुछ सैलरी वगैरह नहीं मिलती इतना, जब आप एजेंट के थ्रू जाते हैं दुबई वगैरह में। तो आई थिंक सम स्टूडेंट्स वो भी सोच रहे हो कि यार हम लोग 12 लाख ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, 4 लाख और इन्वेस्ट करके शिफ्ट में जाएंगे, देन अगर हम एग्जाम नहीं दे सकते तो देयर इज नो यूज। ऐसे कुछ थिंकिंग हो रही है बच्चों की? सर Yes, ऐसा sir. तो फेस, मतलब मेरा बैच तो सर ये टोटली फेस कर चुका है। आफ्टर पेइंग 10 lakhs वी हैव पेड 5 lakhs, वी वेंट टू यूएई, अरब कंट्रीज, वहीं होता आरपीएसएल का। देन आफ्टर दैट मेरे कुछ फ्रेंड्स है जो वहां से आ चुके हैं सेल करके, बट दे आर नॉट एलिजिबल टू गिव एग्जाम नाउ। उनके लिए तो सर बिल्कुल दे आर ऑलरेडी लाइक इन अ डिप्रेस सिचुएशन, कि अब वो सर वो तो बिल्कुल डिप्रेस हो चुके हैं। तो और बहुत सारी ऐसी भीड़ है सर अभी भी। करेक्ट। दूसरी सबसे बड़ी बात होती है कि ये जो मैरीटाइम फील्ड है, इसमें पेरेंट्स लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है बच्चों के साथ में, तो वो लोग भी चुपचाप बैठ जाते हैं। बिकॉज ये मैरीटाइम फील्ड इतनी ज्यादा पेचीदा बना रखी है कि ये वो आरपीएसएल आपको दुबई जा रहा है, आप अभी ये, तो पेरेंट्स लोग समझ नहीं पाते हैं, तो ये वो लोग भी बहुत डिप्रेस रहते हैं कि हो क्या रहा है। और जो स्टूडेंट्स है वो अपने पेरेंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाता क्लियरली। दैट इज करेक्ट। एक्चुअली sir, एक्सप्लेन totally. ना करने का कुछ इशू भी है सर, क्योंकि हाँ। हम लोग को मतलब पूरे नॉलेज भी नहीं है ना सर इस फील्ड में पूरे तरीके से, क्योंकि हमने कॉलेज कर लिया, फिर आगे का तो उतना भी नॉलेज नहीं है कि हम उनको बता सके ऑलरेडी सब चीज। करेक्ट करेक्ट। और 12th के बाद तो बिल्कुल नॉलेज नहीं होता है सर कि ये डी शिपिंग क्या होता है, मैरीटाइम बस जान चुके हैं कि हाँ। इसीलिए मैंने ग्लोबल मैरीटाइम जीएमसी में एक पर्टिकुलर, मैंने इतनी ज्यादा फेसबुक पे अवेयरनेस फैलाई है कि यू आस्क मी फर्स्ट, ठीक है, कि क्या है ये मर्चेंट नेवी, क्या है डीजी शिपिंग, आई डोंट टेक एनी चार्जेस एनीथिंग। मैं घंटों स्टूडेंट से बात करता हूँ। अभी क्या है कि बहुत सारी इवन फ्रॉड एकेडमियां चल रही हैं दिल्ली और यूपी में, है ना। जो वो लोग अभी ओपन सीडीसी आए ना, 4 महीने आपको फ्रॉड एकेडमी में रखते हैं, 3-4 लाख रुपए लेके, उसके बाद में बच्चों को किसी भी इंस्टीट्यूट में भेज देते हैं STW कोर्स करने के लिए। So these kind, like lot of students, like thousands of students are facing this kind of problem. So the biggest drawback is that nobody knows about the rule regulations in 12th class. So this is the biggest reason। इस कारण से हमारे जो युवा हैं, जो लोग अपने हेल्थी हैं, जो लोग एकदम परफेक्ट है हर चीज में, और वो लोग इस तरीके से सफर कर रहे हैं। अब ये फील्ड ऐसी है ना कि आपने नॉर्मल इंजीनियरिंग की है, मैकेनिकल या फिर कुछ भी किया, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आपके पास आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, कहीं पे छोटा बड़ा जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, सो आपका एक मोमेंटम बना रहता है। पर मैरा इंजीनियरिंग में ऐसा है कि अगर जैसे आपने ये इश्यूज फेस कर लिया, किसी ने एजेंट के इश्यूज फेस कर लिया, कोई दुबई में फंस गया, आफ्टर दैट
वो बंद जाता है, मोमेंटम खत्म हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता अब कहाँ जाए। जैसे कि आप लोग के साथ ये प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि अवेयरनेस ना होने के कारण। एंड आई जस्ट फील कि कोई भी कॉलेज में इवन टीचर्स भी नॉलेज नहीं देते हैं आपको पढ़ाते हुए। ये क्या No, बात sir, है? no, not at all. Actually, they are not even bother about studies also. I know I've studied from IMA. I know how we have cleared the exam and everything. सर ये तो वो इश्यूज है, मतलब आप कॉलेज में तो सर वो इस चीज पे कोई बात ही नहीं होती. The only thing we know about DGS is DGS inspection. That's it. बस कि DGS का inspection हो रहा है. There is an inspection going on. That's it. और टार बुक मिलती है सर हमारे को इंजीनियर्स को, जो हमारे को कॉलेज में कंप्लीट करना पड़ता है. देन सर वो टार बुक जो डीजी से, वो बोलते हैं कि डीजी से अप्रूव्ड है या ऐसा समथिंग, वो टार बुक कंप्लीट करना पड़ता है. मैं ऑन बोर्ड टार बुक और जो टार बुक यहाँ मिलती है हमारे को. देन उसके बाद सर कैपेबिलिटी का सर, आई हैव क्लियर्ड माय क्लास 4 एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट. आई हैव क्लियर्ड माय रिटन्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट. आई हैव क्लियर्ड माय ओरल्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट. विद इन 4-5 months I have cleared. But from last 2 years I'm searching for the job. correct. Nobody is giving, because of the college, because of many things, sir. So The we thing are is facing that the now issue. I understand. The thing is that the first step is the unity. First step is that the connection with everyone who is suffering from this, because 500 number is not a, it is a really very serious issue. ये बहुत बड़ा नंबर है. 500 युवा अपने देश के अगर खराब हो जाएंगे तो ये देश को सच में बहुत बड़ा झटका है, और सरकार, गवर्नमेंट भी नहीं चाहती है. मेरे को नहीं पता कि जो ऑफिशियल्स ने आप लोगों से बात करी है उनकी क्या मेंटालिटी है, वो लोग 500 स्टूडेंट्स को कुछ मानते हैं या नहीं मानते हैं. बट मैं फील करता हूँ कि गवर्नमेंट 500 स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करती है और मानती है. सो मैं तो आप लोग को सबसे पहला ये है कि आप लोग, जैसे कि ये एक ग्रुप बनाया था, ठीक है, उसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं 156. मुझे नहीं पता कि वो सारे के सारे दे आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम और नॉट, बट आप लोग जितने भी हैं 10-12 जो भी सफर कर रहे हैं इस चीज से, आप लोग उनको भी इन्फॉर्म करिए. प्लीज कम ऑन ए वन सिंगल प्लेटफॉर्म. कुछ लोगों को मैंने बताया भी है, गाइड भी किया है कि क्या करना है आगे, ठीक है. सो प्लीज फर्स्ट स्टेप इज कम ऑन ए सिंगल प्लेटफॉर्म एवरीवन, देन वी विल स्टार्ट दिस. और मैं 100% श्योर हूँ कि आप लोगों को पक्का जस्टिस मिलेगा, बिकॉज ये आप लोग 10 लाख खर्च करके आप कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में अगर आपने इस चीज को सॉल्व नहीं किया. तो ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है लाइफ में, क्योंकि 10 लाख का इन्वेस्टमेंट, अब आप कुछ और भी नहीं, आप एमबीए वगैरह भी के लिए भी आपके पास पैसा नहीं रहेगा, आप कुछ नहीं कर सकते. मैरिन इंजीनियर्स को पता है, मैरिन इंजीनियरिंग जो है वो आप लोग किसी को बताएंगे तो उसको समझ में भी नहीं आएगा कि अच्छा मैरिन इंजीनियरिंग का यहाँ पे क्या यूटिलाइजेशन है. अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में भी जाते हैं, हाँ आप सीधा बस कॉल सेंटर्स वगैरह में जा सकते हैं, ठीक है. तो ये बहुत सीरियस इशू है, जो इस क्लास 4 का एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं. सो आई रिक्वेस्ट यू कम ऑन ए सिंगल प्लेटफॉर्म. आप लोग, मेरा नंबर है उसमें ग्रुप में, ठीक है, सबके पास ग्रुप में है, तो आप लोग मेरे को मैसेज करो एंड लेट्स ब्रिंग एवरीबॉडी ऑन ए सिंगल प्लेटफॉर्म, बिकॉज यूनिटी में ही पावर है. विदाउट यूनिटी यू कांट डू एनीथिंग. आप सिंगल आप कोलकाता जाओगे. हाँ जी सर, एक्चुअली और एक चीज है कि जो भी अभी कॉलेज में है ना सर, जूनियर, जो भी हमारे जूनियर है कॉलेज में, उन लोगों को अभी जो भी टीचर्स हैं अभी ये मतलब कॉलेज अभी बता रहा है कि आप फॉरेन जाके दे सकते हो, तो फॉरेन के लिए पैसा भी तो चाहिए ना उतना, क्या जाके दे सकते हो. और बोले कुछ नहीं होगा, आप लोग पढ़ो, कुछ नहीं अभी हो जाएगा, कुछ ये नहीं, मतलब उन लोगों को नहीं सर, केवल अलाउड नहीं पॉजिटिव ही है. बताया ना कि इसका जो नेगेटिव है. ये चीज एक्चुअली मेरे एक जूनियर ने ये ट्राई कर चुका है यूकेसीयूसी के लिए और सिंगापुर के लिए भी, बट टोटली डिनाइड है सर. इसके लिए टोटली उधर भी डिनाइड है. पूरा इनजस्टिस है. दिस इज टोटली इनजस्टिस विद आवर यंगस्टर्स कि आप फॉरेन जाके आप पढ़ाई इंडिया में करोगे और आप फॉरेन जाके सीयूसी निकालोगे. इज डिसगस्टिंग, ठीक है. सो वो सब चीजें छोड़ दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता. 14 लाख 15 लाख 16 लाख लगते हैं यूकेसीयूसी क्लियर करने में. आपने 10 लाख अभी यहाँ पे खर्च किए, कुछ कमाया नहीं है. आपका 25 लाख का इन्वेस्टमेंट फ्रॉम ए मिडिल क्लास फैमिली. तो दिस इज लाइक ह्यूज लॉस टू द नेशन, ह्यूज लॉस. इस ऐसा नहीं, ऐसे इस तरीके से काम नहीं चलता है, ठीक है. तो द फर्स्ट थिंग इज दैट प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीवन to come on a single platform. We will start working on it, because आप लोग separate रहोगे, nothing is going to happen.
क्योंकि जो अगर कोई हायर लेवल का भी इंसान होगा वो बोलेगा कि 5 बच्चे सफर कर रहे हैं, he will not listen to you at all. प्लीज, सो अगर आप लोगों को सबको ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, the first step is please come on a single platform. It is not a big issue to come on a single platform. जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, let them study. वो लोग शायद ना माने इस बात को, but because उनको डर भी लग रहा हो कि कॉलेज हमारे खिलाफ एक्शन ना ले ले, something like that, है ना, हमें फेल ना कर दे. So lot of they are immature, so leave them. But those who are mature, those who are already passed out, so the thing is that please come on a single platform. Single platform means let's make a WhatsApp group, let's add everybody who was really suffering, and we will add everybody, and then जब हमारे students हो जाएंगे, then we will take the action. I feel surely हायर अथॉरिटीज विल थिंक अबाउट इट. ये क्योंकि आपने बोला कि दिल्ली एमएमडी में ऑलरेडी वो लोग दे पा रहे हैं, बट कोलकाता में नहीं दे पा रहे हैं. इट मींस इट इज नॉट ए बिग इशू फॉर देम टू सॉल्व दिस फॉर 500 स्टूडेंट्स. तो ये बिग इशू नहीं है. तो आप लोग सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आइए, बातचीत करिए, और उसके बाद में आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर माय प्लान. आई एम नॉट डिस्कसिंग हियर. सो द थिंग इज दैट प्लीज कम ऑन. आई अंडरस्टूड द होल स्टोरी कि पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, किसकी क्या गलती है, मेरे को तो समझ में आ गया है. सेम चीज वी हैव टू एक्सप्लेन टू समवन हु इज एन अथॉरिटी, बट फॉर दैट यू ऑल हैव टू कम ऑन ए सिंगल प्लेटफॉर्म, देन ओनली वी कैन वर्क. बिकॉज आप 5 या 6 या 3 या 2 होंगे, उसमें काम नहीं चलेगा. बोलेंगे ये 3 बच्चे तो सफर कर रहे हैं और सबका तो हो गया है ना. सो nobody will take it seriously. So the first thing is that please come on a single platform. Let's do it. Let's work on it. Correct? I am really 100% support you, and I am with you 24/7 anytime, like providing you all the guidance, anything. एक्सक्यूज मी सर. हाँ सर, जब हमने फैकल्टी से पूछना चालू किया कि सर ये चीज क्या फेसिंग हम लोग कर सकते हैं क्या, उन्होंने अभी हमको सजेशन दे रहा है कि नहीं आप लोग अभी पढ़ो, अभी इस चीज में मत ढुको, कि आप लोग फेसिंग कर सकते नहीं हैं. नहीं, फैकल्टी का क्या, फैकल्टी इज इन प्रेशर ना, उनकी जॉब चली जाएगी अगर वो आप लोगों को सच्चाई बताएंगे तो. दैट इज द इशू विद एवरी कॉलेज ना. जितने भी कॉलेजेस हैं, क्यों ये लोग इन फ्रॉड के बारे में नहीं बताते हैं जो आर्टिफिशियल कंपनीज के साथ हो रहा है, जो बच्चे बाहर ईरान इराक में जा रहे हैं, जितने फ्रॉड्स हो रहे हैं मैरिन में, जो फेक एकेडमियां चला रहे हैं, वहां भी फैकल्टी अपनी मैनर्स ही है, क्यों नहीं बता रहे हैं? बिकॉज उनको अपना पैसा से मतलब है, दैट्स ऑल. उनको अपनी जॉब से मतलब है. और सर बात ये हो जाता है ना कि ये लोग फ्यूचर दिखाने लगते हैं कि नहीं आप फ्यूचर में इतना कमाओगे, इतना करोगे. तो आम आदमी क्या सोचता है ना सर, मिडिल क्लास की, तो ठीक है इतना ही तो लग रहा है, हम कहीं से अरेंज करके दे सकते हैं, फिर तो बाद में आगे तो मिल ही जाएगा. यही इसी कारण से मैं हजारों बच्चों को लाइफ बर्बाद होते हुए देख चुका हूँ. गांव के बच्चे, जो गांव के बच्चे हैं, जो अपनी जमीनें बेच के, जो अपने जमीनों को किराए पे रख के 5-5, 6-6 लाख रुपए जुगाड़ कर रहे हैं, वो भी फ्रॉड एकेडमियों के लिए. तो इश्यूज इतना खतरनाक हो गया है कि एक एक बच्चा गांव से उठ के अपने जो बड़े बड़े सपने हैं कि जहाज चलाएंगे, कैप्टन बनेंगे, है ना, तो उसमें वो बच्चा कहीं से भी लाके 5 लाख रुपए आराम से दे देता है. इवन फोन पे ट्रांसफर कर रहे हैं जॉब के लिए. कितने बच्चों को मैंने देखा कि जो मेरे पास कंप्लेंट लेके आता, उन्होंने फोन पे 1.5 लाख रुपए वो कर दी कि चलो ठीक है कहीं से, और माँ बाप को कुछ पता नहीं होता, उनको सिर्फ मर्चेंट नेवी नाम दिखा देते कि हाँ मेरा बच्चा कुछ तो मर्चेंट नेवी में कर रहा है. ठीक है. सो बिकॉज ऑफ जस्ट आई एम हियर टुडे, बिकॉज मैं यहाँ पैसे कमाने के लिए, कुछ किसी चीज के लिए नहीं हूँ. मेरा एक ही मोटिव है कि जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, जस्ट बिकॉज ऑफ अनअवेयरनेस, ऐसे ऐसे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, जैसे 500 हो गए. तो ये अवेयरनेस ना रहे. हाँ, अवेयरनेस होने के बाद बच्चे अपना दलदल में पैर रख के, वो डिफरेंट इशू हो जाता है. एटलीस्ट उनको निकलने का रास्ता पक्का जरूर वो लोगों ने माइंड में सोच लिया होता है कि हाँ मैं दलदल में जा रहा हूँ और वापस में कैसे आऊंगा. पर बिना इंफॉर्मेशन के दलदल के बीच में खड़ा हो जाए तो वो बिल्कुल लॉस्ट हो जाता है. सो माई मोटिव इज फॉर द 10th 12th स्टूडेंट एंड एवरीबडी इज दैट प्लीज फर्स्ट गेट द इंफॉर्मेशन एंड देन जॉइन मर्चेंट नेवी. जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं, जो लोग सारे एजेंट्स के चक्कर में फंसे हैं, बिकॉज देयर आर 396 आर्टिफिशियल कंपनीज इन इंडिया, और उसमें से आई थिंक 50-60 आर जेन्युइन, अदर्स आर बेस्ड ऑन, आपको जब पता होगा ईरान इराक, है ना, दुबई, यहाँ पे बार्ज वगैरह, इन्हीं सब पे डिपेंडेंट है पैसे लेके. सो आप सोच सकते हो कि 396 नंबर कितना है. चारों तरफ आपके फ्रॉड हैं. तो आपको बहुत समझदारी से काम करना है. दैट्स व्हाई आई एम हियर टू गाइड यू 24/7. ठीक है. सो हम लोग इस विषय में, चलो काफी बात हो गई है. द फर्स्ट थिंग इज दैट प्लीज
come on a single platform. अपने पेरेंट्स को भी लाइए, no problem, I will talk to your parents also, even we can हम लोग कुछ अच्छा सोल्यूशन निकाल सकते हैं पेरेंट्स के साथ। कोई भी पेरेंट्स हो मेरे साथ आराम से बातचीत कर सकता है, तो हम लोग और अच्छे से सोल्यूशन निकाल सकते हैं अथॉरिटीज के साथ बात करने के लिए। तो फर्स्ट थिंग इज दैट आप लोग एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आइए, सबको बता दीजिए, एंड वी विल वर्क ऑन इट श्योरली। करेक्ट? और कुछ इश्यूज? अमित कुमार? मेरा इशू तो सर आपको पता ही है। हाँ मैं पता है, ठीक है, उसके लिए भी काफी काम हो रहा है कि हम लोग बच्चों को जॉब्स भी प्रोवाइड कर सके, कुछ गाइड कर सके। इवन वी हैव रिक्वेस्टेड एवरी कंपनी दैट कि जो 10% कोटा एटलीस्ट ऐसा रखो कि जो बच्चे ऑलरेडी जॉबलेस घूम रहे हैं आप लोग उनको इंक्लूड करो। लाइक लॉट ऑफ बिग कंपनीज आर देयर इन इंडिया, वो लोग डायरेक्ट कॉलेज से ले लेते हैं, तो क्या होगा जो बच्चे बिना जॉबलेस घूम रहे हैं उनका क्या होगा? सो वी आर रिक्वेस्टिंग एवरीबडी, we are requesting the maritime authorities, please put a 10% quota, at least 5% quota, at least 50 20 50 students will get the job. So a lot of things we are doing, let's see we will get success or not, it's in God hand. ठीक है, चलो we will finish this mission. Thank you everyone. किसी को कुछ और बोलना है? लास्ट वर्ड्स? No, sir. Just hope that we will Sir, get. thank you, sir. थैंक यू। देखो आप लोग सिंगल प्लेटफॉर्म पे आ जाओगे, श्योरली जो चीजें है ना वो बहुत तेजी से दौड़ेगी। जो बहुत, मैं ऑलरेडी इसके लिए मैंने प्लान बना लिया है। आप लोग जब सारे एक साथ आ जाओगे देन श्योरली द थिंग्स विल स्टार्ट। ठीक है, सब लोग को इन्फॉर्म कर दीजिए, ठीक है, एंड लेट्स स्टार्ट वर्क ऑन इट। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। Thank you, sir. ओके, बाय बाय, टेक केयर।